সবাইকে জোহার। তো আমরা যেটার को जितना सिलेबस है 1 to 5 और 6 to 8 ওটা মানে আমরা লোক কথা গিলা দেখে লাগলেই হোক। আজ আমরা তিনটা লোক কথা দেখো আজগুলা হাজ বিয়ং আলা লোক কথা কি কিনা হাজ বিয়ং কাল আমরা ব্রত সম্বন্ধী লোক কথা রাখলে দিও আজ আমরা হাজ বিয়ং সম্বন্ধী লোক কথা দেখি হলো। আর এখানে করতে করতে আমরা जितना লোক কথা है ওগুলা সিরা দেব। তো আজ আমরা হাজ বিয়ং কর তিনটা লোক কথা দেখো, একটা চালাক শিয়াল, একটা শিয়ার কর বিহা, একটা বনিয়ার চালাক চারवाहा है ना, বনিয়ার চালাক চারवाहा है तीनों लोग कथा गिला देखो। तो हम देरी ना करी चाड़े शुरू करी होला। वही चालाक सियारটা देखी होला। तो एक सियार था কইলাম, একটা सियार है। एक दिन बेर खाते खाते उसके नाक में एक कांटा पड़ गया। एक दिन कोड खाते खाते ओकर नाक माने कि ना कांटा लगी गेले। उसने बहुत कोशिश की परंतु कांटा नहीं निकल सका। बहुत कोशिश करल মানে কাঁটাটি বাহারা গেল लेकिन কাঁটাটি नहीं बाहर डर से वो छटपटाने लगे। तখন पूरा दुखा लगली। संयोग बस उसी रास्ते में एक नाई जा रहा था। तो वह একটা সংযোগে করে বাত রही कि वह রাস্তাটা মানে একটা নোয়া যাইতে রही। सियार ने नाई से कहा। তখন सियारটা नाईটাকে कहले भाई मेरे नाक में कांटा गड़ गया है, क्या तुम इसे निकाल दोगे? তখন सियारটা না ওই যে নোয়াটাকে कहले कि भाई মোর যে নাকটা একটি কাঁটা লাগি গেল তো তো এটি ভাড়া দেবে কহিলা। তখন नाई सियार को देखकर डर गया। से तখন যে নোয়াটা रहे वो सियार के देखी के डराई गेल। उसने सियार से कहा यदि कांटा निकालते समय तेरा नाक कट जाए तो मैं कहाँ से दूसरा नाक ला दूंगा। तो से तখন कहले कि যদি দেখে বাড়ায় তো বাড়া দেবো কইলা কাঁটাটি, লেকিন কাঁটা বাড়াতে বাড়াতে যদি তোর নাকটা কাটি যেত बोले मैं कहाँ तो ছোট আরো नाक पाए देबो कहिला। सियार बोला भाई यदि तुम और हम जिंदा रहे तो कितने नाक आ जाएंगे, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं, तुम मेरा कांटा निकाल दो। তখন सियार কইলে এই কইলা ওটা টেনশন লিস না কইলে এই নাক মাক কর যদি মই এত চিন্তা রহ বলে কত নাক আতে আতে যেতে রতেই কইলে ওটা কোনো চিন্তা করে না কইলে মোর কাঁটাটি বাড়ায় দে। कांटा निकालते समय नरनी से सियार का नक कट गया। तो ओकर नरनीटी बाहर ली वही नुआटा और जंटिंग नक काटा नरनीटी आउटिंग है भारत भारत के सियार को नाक तक काटा है के लिए। जब सियार नाई से कहने लगा तब सियार नाई से कहने लगा नाक दो या नरनी दो, মানে নাকোয়া দেবে না নরনি দেবে। সে তখন শিয়ালে এবার কিনা কহে লাগলি कि তয় তোর নরনিটি দেবে না মোকে তোর নাক দেবে কহিলে। नाई को नाक कहाँ से मिलता? তখন যে নোয়াটা রহে ওয়া कहाँ लेकर वो नाक पा। उसने अपनी नरनी सियार को दे दी। से তখন ও কিনা করল अपन जो है नरनीटी रही ना ওটিয়ে सियारটাকে दे दिली। नरनी लेकर सियार आगे जाने लगा। तो है নোয়া তাহলে नरनीटी ले ली और सियार आगे बढ़े जा लगा। उसने एक कुम्हार को नाखून से मिट्टी खोदते हुए देखा। तो একটা কুম্হারে দেখে যাতে যাতে শিয়াল দেখেই কি একটা কুম্হার है ना वो अपन ना नौ गिला माटी खोने लगा। सियार ने कुम्हार से कहा अरे भाई तुम नाखून से मिट्टी खोद रहे हो। तখন শিয়ারে কুমারটা কইলে अरे भाई तो ये देखो ना কইলা নখ মানে তো নাই মাটি খনিস না मेरी नरनी से मिट्टी खोद। তখন কইলে হেইলে মোর নঠি দিলে কইলে ইটিং মাটি কি মানে মাটি खोदे কইলে। कुम्हार बोला सियार भाई मिट्टी खोदते तुम्हारी नली टूट गई तो मैं तुम्हारे लिए कहाँ से दूसरी नली ला दूंगा। সেই তখন কুমারটা বলে দেখ তোমার তোমাকে দিস না কহিলা লেকি যদি মাটি খনিত খনিত কে যদি ওর নদীটি টুটি গেলি তো মো কাহা তোকে দোসর নদী পা দেবো কহিলা। সেই তখন শিয়ারে কহলি যদি দেখ কহিলা শিয়ারটা কহিলা कि देख तो यार যদি মই যদি जिंदा रहली है ना तो कितना नौरनी आते आते जाते रहता कहिला। वो बात तक तो एकदम टेंशन लेना रखो बोले तो आराम से नौरनी माटी खन कहिला। সেই তখন মাটি খনিত খনিত কে ওর নদীটি টুটি গেলি। সেই তখন এবার শিয়ারে কহে লাগলি কি তো মোকে नरनी देवे ना चुकुआ देवे माने तो नरनी देवे ना तो चुका देवे कहिले। तो बेचारा कुम्हारे कहाँ नरनी पाते তখন कहले कि एक चुकाटी ले कहले আর চুকাটি दे दिली। तो চুকাটি लेके শিয়ার আগু বটে ফির যাওয়া লাগলো। তারপরে যাতে যাতে শিয়ারে দেখেই লাগি একটা গোয়ালায় গাইকে দুধ দুহিলা আর আর গামছা মানে দুধ রাখি। তো গামছায় কি আর দুধ হতে তো গামছাটা দুধটা গিরতে হয় তার দুধটা মানে ওটা জোড়ো নিয়ে পারিলা। এটা দেখি কে শিয়ারটা গোয়ালাটা কইলে আরে ভাই তোমার মোর চুকাটি দুধ রাখে কইলা আর ওটা হলে দুধ নি গিরতো কহলি। সে তখন গোয়ালা শিয়ারকে কহিলা দেখ কহিলা যদি দুধ দুহেক সময়ে গায়ে যদি লাথি দিলু আর তোর চুকা ফুটি গেল তো মো কাহা চুকা আনিকে দেবো কহিলা। সে তখন শিয়ারে ওকেও কহলে কি এই তুমি টেंशन লিসলা কইলে মই তো जिंदा रहो सलामत रहो बोले उतना चुका आते जाते रहता उठा तो एकदम टेंशन लेना रखो कहिला।
तो चुका माने आराम से दूध दुके दूध ताके दुही आल रखे कहिला। तो बाबू दुहते दुहते किना हली गायटिंग एकेबारे लाथिया देली तो चुका ओकर फाटी गेले। तो तो सियार तो ई मौकाटाই खोजित रहे ताकर बादे सिक्के ओए जे গোয়ালটাকে কহিলা কি তোর যে চুকাটি উটি দে ঘুরা কহিলা নি তোর গাইটি দে কহিলা মানে চুকা দেবে না গাইয়া দেবে কহিলা। সে তখন ও বেচারা গোয়ালায় কাহা পাতে চুকা সে তখন কহিলে যা গাইটি কে লেগে কহিলা গাই লেকে সিয়ার আর সিধা গোটে বড়া বাড়তে বাড়ে বাড়ি গেল। তারপর বাদে যাতে যাতে ও একটা গাঁও পৌঁছি গেল। তো গাঁও মানে নয় একটি তেলিং একটা তেলিং আপন বহু টিকে তেল ওহে যে তেল ঘানি রহিলা না তো ওটা চাইরে ধর ঘুরা হইলা মানে পেরেলায় তেল পেরেত কোন তো ওকে যে বহুটি রহি ওহে ওকে জড়লে হিয়ার তেল পেরা করা লাগল হয়। এটা দেখি কে শিয়ালে কহিলা ওকে তেলি ভাই কহিলে তো আপন যে বহুটিকে কাহে সঙ্গে ইহা করে লাগল আসি কহিলা মানে মানে তেলটা পেরা করা শিখলা কহিলা দেখ কহিলা মোর পাশে একটি গাই আহি তো এটি কে লে কহিলা আরে এহেটি তেলটাকে বাহারায় কহিলা। সে তখন তেলিং শিয়ার কে কহিলা ভাই শিয়ার দেখেন ঘানি চালার সময়ে যদি তোর যে গাইটি একু ওকে যদি গোড় টুটি গেলে তোমার তোর জন্য কাহালি তো তোর গায়ে আনি কেতে পারবো কহিলা। সে তখন শিয়ারে তেলি মানে শিয়ারে তেলিকে কহিলা এই কহিলা গাই তোর চিন্তা করিস না তো আর মোর জীবত বলে কত না গাই এটা কহিলা তো মোর কথা মান কহিলা আপনার হইলে গাইটি গেলে আর গাইটিকে জোড় তারপর বাদে যখন ও মানে ঘানিটি জড়লেই আর একেবারে চাইলো ঘুরাত ঘুরাতকে গাইটি করে একটা কুটি গেলে। সেই তাকর বাদে যে শিয়ার রহে তেলিকে কহে লাগলেই গাইয়া দেবে না বৌহা দেবে কহিলে মানে গাইটি দেবে না তোর বহুটি দেবে কহিলে। সে তখন তেলি বেচারা কাহার গাই ওকে আনিতে পারতি সে তখন কহিলা যা এইলে মোর বহুটিকেই লেগে কহিলা। তারপর সিদ্ধা শিয়ার তো সিদ্ধা যখন তেলিকর বহু লেকে আগু বাটে বাড়ল আর যাতে যাতে একটা দশর গাঁও পাবালি ও গাঁওটা ন একটি একটা যে মুচি রহে ওয়ে বিলাইকে কিনা পিঠা করা করাইতে রহি তো বিলাইয়ে কিনা করে আধা খাইতে রহি আর আধা রাখিতে রহি। এটা দেখি গিয়ে শিয়ারে মুচিটাকে কহলে এ ভাই তোমায় বিলাইটিকে কহিলে পিঠা বনা করা শিখলে আর ওই তো আধাটি খা দেবিলা আর আধাটি রাখি দেবিলা কহিলে তোমায় তোকে টেনশন কাই লিসলা কহিলে তোমায় মোর হইলে বহুটি কেলে আর একে পিঠা করা করা হি কহিলে। সেই তখন শিয়ারে শিয়ারে মচিসকা সেই তখন যে ইহাটা রহি মুচিটা তোমার কহিলা দেখ পিঠা তোমার তোর বহুটিকে মুখে দিসলা কহিলা লেকিন যদি ওহে পিঠা ছাঁকি ছাঁকি থাকি তোর বহু আঁখে তেল যদি ঢুকি যায় আর কানি হয়ে যাতি আর তাহলে ফির তোর বহু খুঁজলে মো কাহা লেগে নি পাইকে দেবো কহিলা। সেই তখন শিয়ারে মুচিরাকে বিশ্বাস দিলালি কি এ তো এটা টেনশন লিসলা বহু কর কহিলা তো আর মজা জীবন তোর কথা না বহু পাবিত কহিলা লেকিন তারপর বাদে হ্যাঁ ঠিক আছে যখন কহলি সেই তখন তারপর বাদে এখন হ্যাঁ তেলিক বহুটিকে শিয়ার সঙ্গে রয়ে সেই ওকে দিয়ে দিলে ইয়ার কিনা তেল ইহা ছাঁকা করা লাগলো পিঠাটা তো ছাঁকতে ছাঁকতে ভাই হঠাৎ তোর যেসন সোচলে রে ওসনে গেলি ওপরে কিনা মানে এই তেল ছিটকি গেলি আইকে আর উকানি হয়ে গেলি সেই তখন এবার শিয়ারে মুচিকে কহে লাগলি তোমায় এবার তোমায় মানে মোর বহুটি দেবে না তোমায় ঢোল দেবে কহিলি। তো মুচি আর কাহা ইহা পাতে বহু রলে তো ওকে ছাঁকা করে দিলি সে তখন কইলি যা এইলে ঢোলটাই লেগে কইলা ঢোলটা শিয়ারকে দে দিলি তাই ঢোল লেগে শিয়ার সিদ্ধা একেবারে বন বাটে গেল আর বনের ধাইরে একটা কুয়া রহে ওটা বসিকে একেবারে ঢোলকে বাজা লাগলো। তো ঢোলকর বাজাল শুনিকে আরো শিয়াল গিলা ওকর পাশ আলা আর পুছে লাগলে ঠিক ঢোলটা তো কাহা পালে তো শিয়ার তো শিয়ারটা কি চালাক চালাক রহে ও কিনা কই না কি ঢোলটা না মই হে কুয়াটা লেগে উঠালা কইলা যদি যদি তোহরেও এই কুয়াটা নাভি যাবে হেন ইয়া বহুত ঢোল আহি কহিলা তোহরে আপন আপন ले लेबे हेन। तो जे चालाक শিয়ার যে শিয়ারটা রহে ও আরো শিয়াল গিলা করতে কি কই কাহা নি দেখাইলে যে তখন ও যে ওর ঢোলটা রহে না ঢোলটা কুয়াটা একবারে লেগল তো ছিটকে ছাইতে দেখালি হ্যাঁ দেখা কইলা দেখা লাগলে তখন ওপর ছাইতে দেখি যে একদম শিয়ালে হুয়া ঝাঁপ দে লাগলে ঠিক কুয়ায় আর ঝাঁপ দেখে হুয়া ডুবি গেলা তো ডুবি গেলা তো উঠেন লাগলা তখন আরো শিয়াল গিলা পুষতে না কই ও যে নি উঠে লাগল
এই কোকা কইলা ও কাহে উঠত কইলা এখন বাছে লাগলা বেশ বেশ গিলা কইলা তাকর বাদে ওকর দেখি কি আরো সব চেয়ারে হুয়া ঝাঁপ দে দেলতি তাকর বাদে সব শিয়ার গিলা হুয়া ডুবি के মরে গেলা আর চালাক শিয়ার জঙ্গলে আর তাকর বাদে যে চালাক শিয়ারটা রহে ও একলাই বন বাটে চলে গেল তো যেই চালাক শিয়ারটা সিরা গেল এবার আমরা দেখেলা শিয়ার কর বিহাটা শিয়ার কর বিহাটা এবার देखो मैंने सियार का विवाह था एक सियार था कोई एक सियार रहे एक दिन उसने नदी में पायखाना कर दिया एक दिन एक बात रही वो नदी में पायखाना कर दिले दूसरे दिन वो पायखाना के बदले कुछ मांगने के लिए नदी के पास आया ताके बदले दूसरा दिन किना हली वो पायखाना कर बदले नदी के पास आला और कोनो ओकर बदले मांगे लगली उसने नदी में पायखाना के बदले कुछ मांगा नदी में पायखाना कर लेना सेटा के बदले मुझे कोनो दे कहिला नदी ने बदले में एक मछली दी तो नदी ने किना करो ओकर बदले एक मछली दे दिली मछली लेकर वो गांव की ओर चल पड़ा तो मछली लेकर तो सीधा गांव चलल वो गांव में एक चूड़ा कूटने वाली आंगन से पार हो रहा था कि उसकी नजर चूड़ा कूटने वाला वाली के भोजन पर पड़ा तो वो जे जहाँ जे चूड़ा चूड़ा कूटत न ओहे ओकर जे ओकर अनगार रहे उनदेले पार हित रहे से तखन ओकर नजर ओहे चूड़ा चूड़ा कूटने वाली की भोजन पर पड़ा माने जे चूड़ा कूटैया ओकर भोजन ना पड़ली माने ओकर भात ना पड़ली वो बैगन की सब्जी खा रहे थे वहाँ बैगन को सब्जी खाती रही वो उसके पास मछली छोड़कर चला गया तो किना करो लोकर पास से मछली दे रख लिया चली गई दूसरे दिन वो पुनः आया और चूड़ा कूटने वाली को मछली के बदले कुछ मांगने लगा तो दूसरे दिन हुआ गेल वह चूड़ा कूटने वाला बेटी पास और कोई मछली को बदले मुखे बेर कोनो दे कोई उसने मछली के बदले एक छुरी दी तो वो मछली के बदले किना दिले एक छुरी दिली सियार छुरी लेकर अपने राह में चल पड़ा तो सियार किना करो छुरी थी लेके सीधा चलल वह एक दूसरे गांव में पहुंचा मैंने जाते जाते एक तो दूसरे गांव पहुंचल वहां उसने अपनी छुरी एक टोकरी बुनने वाले को दे दिया तो वहाँ जाते जाते एक की वह जे आज सूप खांची बुनत ला ना वह टोकरी बुनना वह ओके दे दिली बिना कुछ कहे ही वो वहाँ फिर चला गया तो वहाँ ओके छाड़ी रख ली वह छुरी टिके और बिना कोनो कही के वहाँ लग चली गई दोसर दिन सियार आराल और मोहली टिके मार मोहली टिके कहे लगली कि मुझे छुरी दे ला ओकर बदले तुम कोनो दे कहिले मोहली ने उसे दो टोकरिया दी तो मोहली ने ओके दुईटा टोकरी दिली मैंने खांची टोकरी गिला दिली उन टोकरियों को लेकर वो चल गया तो है वो दियो के खांची टोकरी गिला लेके वो चले लगल रास्ते में उसकी भेंट एक कुम्हार से हो जाती है तो जाते जाते ओकर भेंट कुम्हार संग हेली तो उ किना कहलु दे जे देल दुईटा टोकरी गिला रहे न ओटा कुम्हार के दे दिली और चलते बनल तार बाद कुछ दिन बाद सियाल आया और टोकरिया के बदले कुछ मांगने लगा तो कुछ दिन बाद सियाल फिर कुम्हार ता आला रहे जे खांची टोकरी गिला के बदल फिर कोनो मागे लगले तो कुम्हार ने टोकरिया के बदले दो घड़े दिए तो कुम्हार किना करल दुईटा हाड़ी दे दिली किना ओहे यहाँ टोकरी गिला बदलता सियाल सियाल माने हाड़ी गिला लेके चलल रास्ते में एक बड़ा मैदान मिला जाते जाते एक बड़े मैदान पर वहां पर उसने वो दोनों घड़े को रख दिया तो जाते जाते वो जे यहाँ गिला दे तो हाड़ी गिला वहाँ रखी दिली मैदान उसी रास्ते पर मोर मोर अपने बैलों की जोड़ी ले जा रहा था तो वह रास्ता था ये मोर है और अपन माने गोरु को जोड़ी की लगी थी संयोग बस उसने बैलों के टक्कर लगने से उनके दोनों घड़े टूट गए तो माने गलती से गोरु गिला टक्कर मारी दलती तो जो हाड़ी गिला रहते गिला टूटी के लिए सियाड़ अपने घोड़ों के बदले मोर से कुछ मांगने लगा तो सियाड़े मागे लगले बेर यहाँ कर बदले ओकर हाड़ी गिला के बदले मोर ने बदले में दोनों बैल दे दिए तो किना कर लिए ओकर दियो गोरु गिला बदला माने दे दिले बैलों को लेकर सियार अपने रास्ते चल पड़ा तो है गोरु गिला लेके सियार अपन रास्ता माने जाए लगल बहुत दूर जाने के बाद उससे एक गाँव मिला तो जाते जाते एक दोसर गाँव पर वहाँ उसने अपने दोनों बैलों को तेली को दे दिया तो वो दियो गोरु गिला के तेली के दे ली कुछ दिन बाद सियार पुनः तेली के पास आया और बैलों के बदले तेली से कुछ मांगता है तो थोड़े दिन के बाद फिर तेली तहाँ लार कोई कि गोरु गिला के बदले मुझे कोनो दे कोई परंतु उसके आने से पहले दोनों बैल मर जाते हैं लेकिन किना हली सियाड़ा कोई मुझे दोनों दियो गोरु गिला तो नुगला मोरी गिला तेली बैलों के बदले एक घड़ा तेल देता है तो तेली किना करो गोरु गिला के बदले एक हांडी तेल दे दिली उस तेल से भरे घड़े घड़े को लेकर सियार चल दिया तो तेल ले भरल जे हांडी थी उठी लेके सियार चली दिली वो तेल भरे घड़े को लेकर सीधा राजमहल चल गया तो ये सीधा राजमहल पहुंची गलो है हांडी टिके लेके वहाँ राजकुमारी की शादी हो रही थी तो वहाँ राजकुमारी को बिहार हुई परंतु तेल तेल का इंतजाम नहीं था लेकिन वहाँ तेल को तो कोनो हिसाब
ये घोटी के रहन वो तेल का घड़ा वहीं छोड़ कर चला गया। तो किना करल हुआ ये है तेल को ये हांडी थी रहन हुआ छाड़ी के चली गल। कुछ दिन बाद सियार पुनः राजा के पास आता है। तो थोड़े दिन बाद सियार राजा के पास आला और है हांडी माने एक हांडी तेल कर बदले कोनो मांगे लगली। लेकिन राजा के पास तो तेल था ही नहीं, वह उससे क्या देता। लेकिन राजा के पास तो तेल ही नहीं रही तो किना देते कहले। पुनः उसने राजकुमारी का विवाह सियार से कर दिया। लेकिन बादे किना करल बादे वह राजकुमारी को बिहाटा सियार संगे कही देली। विवाह के पश्चात सियार सपत्नी अपने घर चल गया। तो एबे ओकर बहू के लेके वो अपन सियार चली देली अपन घर। एक दिन वे दोनों लकड़ी लाने जंगल जाते हैं। तो एक दिन की कथा है कि सियाल और ओकर बहू माने काठिया ने जी हाँ जंगल माने बन गया है। तो वहाँ उन्होंने लकड़ियां इकट्ठा कर गटर बना ली। गटर बनाने के बाद राजकुमार ने सियार से वो गटर उसके सिर पर उठा देने को कहती है। प्रत्युत्तर सियार कहता है कि पैखाना के बदले मछली, मछली के बदले छुरी, छुरी के बदले टोकरी, टोकरी के बदले घड़ा, घड़ा के बदले बैल, बैल के बदले तेल और अंत में तेल के बदले पत्नी मिली है। सियार की बात सुनकर राजकुमारी क्रोध हो जाती है और वो गठरी सियार के ऊपर दे मारती है। सियार वहीं पर मार जाता है। सियार तो मरी जाए ओके মানে একটা কাঠি জড়ো করলা আর কাঠি গিলা বাঁধি দেলতি। তারপর বাদে ओकर बहुत टिंग सियार के कहले कि देछि कि अलगा दे कहिला। लेकिन उ अलगा दे कहिले हेगिला कहि देले कि मोय केसन केसन ना तोके पाला से तखन। तो इटा सुनि के राजकुमारी रागाय गेली। आ रागाय गेली से तखन হয় যে ओकर মানে ইহা বনা রহি কাঠি ধারানিলা জড়ো করিকে কাঠিক ডিং আর বাঁধলে রহি সেইটাকে বোঝাটাকে শিয়ালের উপরে পটকে দিলে সেটা শিয়াল মরি গেল। দেহনিয়াটা কিনা চালাক শিয়ালका विवाहটা सिरा गेली। तो एबर हमरे एक आर के कहानी तो देखियो ना कि ना बनिया और चालाक चरवाहा कि ना बनिया और चालाक चरवाहा बहुत प्राचीन काल की बात है कि एक गांव में दो एक गांव में दो भाई रोज रहे। तो ये बहुत बहुत गरीब रहते मजदूरी करके वो किसी प्रकार जीवन व्यतीत करते थे। तो मजदूरी करके कोनो हिसाब से जीवन व्यतीत करते रहो। बड़े भाई के घर में सारी जिम्मेवारी छोटे भाई को देकर चरवाहे की नौकरी के लिए घर से निकल पड़ा। बड़े भाई ने घर की सारी जो ओकर बड़े भाई टा रहे वो घर एक साढ़े सब जिम्मेवारी तो छोटे भाई के दे के चरवाहे की नौकरी के लिए घर से निकल पड़ा। घर लेके बाहर आ गए। चरवाहे की नौकरी के लिए वो दूसरे गांव के लोगों को कहने लगा। संयोग बस एक बनिया ने उससे अपने घर में चरवाहा रख लिया है। संयोग बस और बात रही कि एक बनिया ओके ओकर बड़े भाई के चरवाहा मैंने रखी ले ली। बनिया बहुत बदमाश था। तो बनिया तो बहुत बदमाश रहे। अब दोनों में लेन देन की बात होने लगी। तो अभी चरवाहा रख ली तो अभी लेन देन की बात है लगी। बुनिया ने कहा यदि तुम मेरे घर में चरवाहा रहना चाहते हो तो तुम्हें वचन देना होगा कि तुम साल भर रहोगे। तो बोले बुनिया कि मोर घर चरवाहा रहोगे तो तुम्हें कि साल भर रहोगे। यदि तुम साल भर नहीं रहोगे तुम्हारी पीठ की चमड़ी उधेड़ दी जाएगी और तुम्हें इमली के पत्ते का में भोजन दिया जाएगा। तो कहले कि तुम यदि एक साल नहीं रहोगे साल भर हले कहला তোর মারি মারিকে তোর পিঠ মানে পিঠে চাম ইহা করি দেবো কহিলে হাতাবো কহিলে আর না हाथ तेरे पते भात देबो कहिले। चरवाहा देहाती था। उसने बिना कुछ सोचे समझे हामी भर दी और बनिया के घर में रहने लगा। तो चरवाहा ना उची देहाती लोग रहे यार उची बुझे नहीं पारल। तो बिना सोचे समझे कि हाँ कही दिली यार बनिया घरे काम करे लगा। उसने बनिया का काम करना शुरू कर दिया। बनिया घरे काम करे शुरू कर उसे इमली के पत्ते में ही भोजन दिया जाने लगा। तो है इमली के पत्ते ही ना उसे भात देते थे। कुछ दिनों बाद भोजन के अभाव से चरवाहा का शरीर सूख कर कांटा हो गया। तो एबे देखा तेतीर पाते यार कोटी हुआ बात आंटती। तो थोड़े दिन के बाद किना हली तो माने खाई नहीं पाले तो केउ हले कमजोर हेबे करते। तो वो बहुत कमजोर है गेल कोन और चरवाहा अभाव से सूख कर कांटा हो गया और काम करने की शक्ति उसमें और काम करे को शक्ति ऊपर से कम है के लिए उसने बनिया को कहा कि हम दोनों के बीच जो समझौता हुआ है उसका पालन कर सकते हैं। बनिया ने उसके पीठ का थोड़ा सा चमड़ा उधेड़ लिया। चरवाहा रोते रोते अपना घर चला गया। तकर बाद किना हली बड़े भाई की दुर्दशा देखे छोटे भाई ने पूछा भैया तुम्हारी ये हालत किसने बना दी है। तखन बड़े भाई को रोको जे स्थितिटा रहे ওটা দেখি के छोटे भाईटा कहले कि তোকে এসন কোনে করলু। তখন ওकर যে বড় ভাইটা उत्तर देले कि बनिया ने ये दुर्दशा किया है बनियाटा मुके एसन मारे कि करले है कहिले यह सुनकर जे ओकर छोटे भाईटा बहुत रागा गेल। उसने बड़े भाईटा के कहले कि अब तुम एबे तो घरे रहे कहिला मैं एबर मैं बनिया घर काम करे जाम कहिले। इतना कहकर वो छोटे भाईटा बनिया घर चले गेल। उसने बनिया से कहा मैं नौकरी की तलाश
मैं निकला हूँ, यदि आपको नौकरी की आवश्यकता हो तो मुझे रख लो। बनियाटा कहले कि मैं नौकरी खोजे बाहरला तो तहाँ जदि नौकरी को तो जरूरत है बोले मुके रखिले कहले। बनिया ने इस शर्त के साथ रखा कि उसे वर्ष उसे वर्ष भी रहने में मेहनत ना मिलेगा, अन्यथा नहीं। ओको हनियारे कहले कि तुम पूरा वर्ष माने पूरा साल भर रहे हले इहाटा पाबे कहले माने भूतिटा। আর নিহলে नहीं यदि साल भर नहीं रहोगे तुम्हारी चमड़ी उधेड़ लूंगा। तो आप साल भर नहीं रहोगे हले ओको पहले का नहीं कहले कि तो क्या मारी के चम बढ़ा दे कहले। छोटे भाई ने शर्त मंजूर हुई, वो बनिया के वहाँ चरवाहा काम करने लगा। तो छोटे भाई वो तो जाने की क्या रहा तो वहाँ कह दिली और वहाँ काम करे लगा। रोज सवेरे वह बकरियां चराने के लिए जाता और भात खाने के लिए पत्ता तोड़कर लाने लगा। उसी पत्ते पर खाने के लिए फैला देता, जितना खा सकता था उतना खाता और बाकी दूसरे को दे देता। एक दिन जंगल में एक खरगोश मार कर ले आया। तो एक दिन कथा रही हूँ जो मैंने बोल ले था ना खरगोश मारी के आन ली। खरगोश का मांस देखकर बनिया बहुत खुश हुआ और कहा कि तुम रोज इसी प्रकार मांस लेते लाना। तो ओकर इहाटा देखी के खेड़ा तक मांस देखी के और बनिया कहले तो रोज एक मांस आनबे कहले आनियर। परंतु बेचारे प्रतिदिन खरगोश कहाँ मिलते, लेकिन रोज रोज कहाँ वहाँ खेड़ा पाप। उसने प्रतिदिन एक एक बकरे को मारकर मांस लाने लगा। तो क्या करो रोज एक एक छागिर के मारे और ओहे कर मांस आने। इस प्रकार बकरे समाप्त होने लगे। तो ये देखिए जितना छागिर होते बोला सब सिरा लगले। तो एक दिन बनिया ने चरवाहे को पीछा किया और पूछा कि तुमने मेरे बकरे को कहाँ रखा है। तो एक दिन बनिया ने चरवाहे के पीछा कर लिया, कोई लेकिन मोर छागिर गिरा तो कहाँ रख लेते। उसने जवाब दिया, आप ही तो रोज मांस लाने के लिए कहा था, मुझे खरगोश कहाँ से मिलते। कोई लगी तो मुझे रोज मांस आने को रोज कोई मैं कहाँ रोज खेड़ा पाबी, इसलिए आपके कहे अनुसार मैं प्रतिदिन एक एक बकरे को मारता और मांस लगता। तो तुम जैसा कहले ওইটা অনুযায়ী কইলে মই রোজ एक একটা কিনা খাসি के কাঠি হন না আর ওইটা कर মাছ আনি হন না সেইটা গেলা যে এই ছাগের গিলা कम है लगला। चरवा ने एक दिन जंगल में सूखी लकड़ियां लाई। बनिया ने इसी प्रकार रोज लकड़ियां लाने को कहा। तो एक दिन चरवा था कि ना सुखल काठिया नल। तो फिर बनिया था कि ना कोई लगता रोज आनबे कोई सुखल काठी। परंतु बेचारे को नित सूखी लकड़ी कहाँ मिलती, लेकिन बेचारा कहाँ रोज सूखल काठी पावे। उसने बनिया के घर के पिछवाड़े में रखी बलिया को कर मसाला लाने लगा। तो किना करल ये ओकर छान कर इहा बल्ली गिला रहत ना माने हुआ तो है छान कर ओकर पिछवाड़े रखल सुखल काठी रहो तो गिला के माने आने लगली। तो कुछ दिन बाद बनिया ने पूछा घर के पीछे बल्लियां कहाँ गई। तो कुछ थोड़े दिन बाद जो बनिया था पूछे ही लगी घर के पीछे जे राखल बल्ली गिला रहो तो गिला कहाँ गला कहिला। चरवा से तखन जवाब दिले, मालिक आप ही तो प्रतिदिन सूखी लकड़ियां लाने को कहा था, मुझे जंगल में रोज सूखी लकड़ियां कहाँ मिलती, इसलिए मैंने पिछवाड़े से रखी बल्लियां लाई। तखन कहली तुम्हें तो मुके रोज आने कहले रोज कहिले सुखल काठी, लेकिन जो बोने कहाँ रोज सुखल पाटी काठी पाबे कहिले से तखन मैं एगिला की रोज आने त्रियन से जला एगिला सिरा गेला कहिले। बनिया सोच लगे कि चरवाहा को कैसे भगाया जाए। तो ये फिर सोचे लगे कि चरवाहा रे मोके डुबाल रे कहिला एबेर के कैसे पड़ा कराबी कहिला वो मुझे रोज सता रहा है। वो सोचे कि एबेर ये मोके এখন आजकल सता लगल है। एक दिन बनिया की सभा में जा रहा था, उस समय चरवाहा जोर से पुकारने लगा, मालिक आप कब लौटोगे। तखन एक दिन कोनो सभा में जाते रहे से तखन चरवाहा ओके पूरा रागे रागे हाका लगली और कहला कि तय कबे घूरी आबे कहिला। जोर से आवाज से बनियान लज्जा महसूस हुई, इतना रागे कहते रही कि बनियाटा इतना लाजे है। उसने कहा तुम इतने जोर से क्यों पुकारते हो। बोले तुम इतना रागे काहे कोइला घर में आग लगने पर भी लोग इतने जोर से नहीं पुकारे, घरे आग लगलो लोगे इतना लगी गुल नहीं करत कोइला। कुछ दिन बाद बनिया के घर में आग लगी। थोड़े दिन बाद बाबा बनिया घरे आगे लगली। चरवा उसके कान में जाकर कहने लगा कि मालिक घर में आग लगी है। तो हम चरवा कि करो जाके कान पसीन जाके कहला कि मालिक घरे आग लगले। उसने कहा हमें जल्दी जल्दी भारी कीमती सामानों को घर से निकलना चाहिए। तो खाना कहले कि जाने जाने कहले हमें जितना भारी सामान है और कीमती सामान से घर ले बाहर ही कहले। तो चरवाहा लोहा जैसे भारी भारी सामान को निकालने लगे। तो चरवाहा कितना कहे यही लोहा पड़ गिला के भारी भारी सामान गिला भरा लगा। बनिया आया और पूछने लगा तुमने भारी भारी सामान निकाला। चरवाहा ने कहा देखिए आंगन में रखा हुआ है। तखन बनिया तो आला कहले कि तो भारी भारी सामान गिला भरा लेना कहले। तखन चरवाहा कहले हाँ देख कहला यह रखो लगे कहले अनगाटा लोहे जैसे भारी सामान देखकर
कहा कि तुम बड़े धूर्त हो कहले लोहा गिला सामान देखी कहले तुम बहुत बड़े मूर्ख कहले। एक दिन रात को बनिया का पुत्र वो अतिसार होने लगा तो एक दिन उनकर बात है कि बनिया कर जे बेटा तो रहे न के ना हेले ओके झड़ा है लगले अतिसार है गेली। उसने चरवाहा से कहा कि उससे बाहर ले जाओ। तो चरवाहा के कहले कि एके बाहर ले गए। उसने लड़के को बाहर ले गया। लड़का जोर जोर से रोने लगा। तो चरवाहा चरवाहे ने लड़के को जोर से रोता बच्चा डर से चुप हो गया। तो चरवाहा ने किना कर ओके रफ्तो ले ठीक से तक छुआटा चुप हो गया। उससे घर वापस ले आता कर घर आने घुरा ले बच्चे ने अपने पिता से बाहर जाने की इच्छा व्यक्त की। तो छुआटा अपन बाप के कहले मुके बाहर जाने की इच्छा करेला। आपे से बाहर होते हुए उसने चरवाहा से कहा इससे बाहर ले जाओ और पटक दो। से तखन गाय के कहले कि बाहर ले जा पटकी नहीं कहले। मालिक ने मालिक की बात मानते हुए उसने बच्चे को पटक दिया जिससे बच्चा मर गया। सवेरे बनिया ने चरवाहा से पूछा बच्चे कहाँ है। किना है चरवाहा जैसन कहले रही उसने जाके बाहर आके पटकी दिले तो छुआ मरी गेल। बिहान बनिया कहला चरवाहा के कि छुआ कहाँ है। चरवाहा तक जवाब दे कि देखिए छप्पर पर सूखने दिया गया है। देख कोयला है छान ऊपर सुखेला दिल गेल है। बच्चे की मृत शरीर देखकर बनिया का दिमाग खराब हो गया। ओकर मरल देखी कि आरो छुआ के मरल देखी कि ओकर आरो दिमाग खराब होने लगल। वह सोचने लगा कि इस साले ने मेरा घर द्वार पुत्र को नष्ट कर दिया है। अब वह मुझे अब किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। तो घर दुआर सब छुआ पुता सब नष्ट कर दिले कहले। एक दिन की बात है कि बनिया ने अपनी पत्नी से कहा। एक दिन कथा है कि बनिया अपन बहू के कहले अब हमें भाग जाना चाहिए वे हमरे के यहाँ पढ़ा जाना चाहिए कहले रात को। और उसने कीमती सामान बॉक्स में भर दिया और जाने की तैयारी करने लगा। तो रहते कीमती सामान गिला बक्सा में भरी दिल थी और जाए की तैयारी करने लगा। किसी तरह चरवाहा को मालूम हो गया कि उसने मालिक अपने यहाँ से भाग रहे हैं। तो चरवाहा ने कोनो हिसाब जाने पल की मालिक अपन बहू के लेके यहाँ पढ़ा लगल है। वह बक्सा के भीतर बैठ गया। तो ओकरे की ना करल बक्सा के भीतरी जाके पोसी दिली। वह बक्सा बनिया की पत्नी की ढो रही थी। तो बास्केट के जब बनिया को जब बहू रही हुए उठे उभले रही। भीतर में बैठे चरवाहा को लघु शंका लगी। तो किना हली भीतर बसल जे छुआटा रहे चरवाटा रहे ओके हुआ पेशाब लगली। जब रहा ना गया तो लघु शंका कर डाला और इससे बनिया की पत्नी के सिर भींग गया। तो किना हली जखन एकदम रोके नहीं पारल से तखन दिले पेशाब करी। तो किना हली पर जे बहुत ही रही ओकर गोटा मूड हिंजी गेलै। उसने अपने पति से कहा पानी गिर रहा है। तो वहाँ अपन पति को लेके यहाँ पानी गिरे। पति ने कहा इसमें गंगा जल रखा है शायद ढक्कन खुल जाए। तखन ओकर जे पति ने ओकर जे पुरुष ने कहले अरे यहाँ गंगा जल रखो रही से ढक्कन खुला लेती कहले। सवेरे होते होते हुए एक नदी किनारे पहुंचे। तो बिहान होते होते ओकरे एक नदी धर पहुंचल जलपान के लिए बक्सा खोलने लगा। तो कोनो खाया ओकरे बास्केट खोले लगल। जैसे ही उसने हड़ बास्केट के खोलला चरवाहा तो हुआ चरवाहा भीतर लेके बाहर जलपान कर फिर वह आगे चल पड़े। एकर बादे जलपान करला माने नाश्ता पानी करला आगे गोटे बढ़ला। चलते चलते शाम हो गई। तो एक कुएं के समीप सोकर रात बिताई। तो जब जब सांझ हो गई तो एक कुआं के पास जाके रात बिताला। बनिया कुएं के फर्श में सो गया और चरवाहे को कुएं के छोर की ओर सुलाया। चरवाहा झूठ मूठ खराटे लेने लगा। तो चरवाहा से मीठा मुझको किना घोड़र पीटे लगल। जैसे ही वे दोनों सो गए वह उन दोनों के बीच सो गया। तो जैसे ही ओकरे बीच में निदल और मास्ट जाके वो निदा दिले। बनिया ने सोचा था कि कुएं की छोर चरवाहा सोया हुआ है। तो बनिया बनिया ने सोचा था कि कुआं तक एक धैर्य नहीं चरवाहा तो निदाला इसलिए अपने पत्नी को ढकेलने के लिए कहा। मौका पाकर चरवाहा ने अपने मालकिन को धकेल दिया। मौका पाते ही चरवाहा ने अपन मालकिन की लेकिन ढोकली दिली वह कुएं में गिर पड़ी। बनिया ने कहा इस मूर्ख ने हमें कहीं का नहीं रखा। अब उन्हें क्या करना चाहिए जिससे चरवाहा से उससे छुटकारा मिले। बनिया और चरवाहा दोनों बनिया के ससुराल के तेबे की ना आइले ओकर बहुत ही तो मोटली। तो बनिया चरवाहा दियल मिल के ओकर ससुराल गेले। चरवाहा ने उसे ससुराल वाले से कहा मालिक का पेट खराब है इसलिए भोजन नहीं करेंगे। चरवाहा ने कहना मालिक का पेट खराब है इससे जला मैंने भोजन नहीं करो भात उत नहीं खाता वह स्वयं भोजन कर गया और बनिया भूखे सो गया। अरे वो अपने तो खाए ले ला
ये बनिया तो भूखे ही रहला। अब बनिया ने चरवाहा से कहा, मैं तुम्हें और चरवाहा के रूप में नहीं रख सकूंगा, तुम मेरी चमड़ी उधेड़ सकते। वह थोड़ा सा चमड़ा उधेड़ कर अपने घर के लिए चल पड़ा। बोले कि मैं तो क्या चरवाहा नहीं रखे पर मो कहिला एबे तोय मोर कहिला माने मारे के मोर चमड़ीटा गुचाते कहिला। तो वो उसने करो लारू सीधा घर बाटे चली गई। रास्ते में देखा कि एक राजकुमार घुड़सवारी सीख रही थी। तो रास्ता में देखिस कि एक जो राजकुमार रहे ना, वो घुड़सवारी माने घोड़ा चला सीखे थे। चरवाहा वहां पहुंचा और राजकुमार से कहा, ए भाई मुझे भी चढ़ने दो। तो वहां पहुंची गए। चरवाहा कोयला खींची मुक्को चापे दे कहिला घोड़ा था। राजकुमार ने घोड़े को चढ़ने की आज्ञा दी। तो राजकुमार को ले जा जा घोड़ा चाप कहिले। कुछ दूर तक उसने घुड़सवारी की तो राजकुमार को लगा कि यह आदमी बहुत अच्छा घुड़सवार है। थोड़े खन ये माने थोड़े दूर यहाँ घोड़ा चप्पल से तो राजकुमार के लग रही कि तो बहुत घोड़ा चलो ये इस्पात है के लग रही। ये हमारे घोड़े को प्रशिक्षण दे सकेगा। तो के लगली कि मोर घोड़ा तक शिक्षा दे पारे। इसी प्रकार दो चार बार उसने निकट से घुड़सवारी का प्रदर्शन किया और अंत में घोड़े को लेकर चलता अपना वहीं नीचे का कोरल और सीधा घोड़ा लेके चली गई। चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचा। तो चलते चलते जाते जाते एक नदी को धार पहुंचल। वहां पर एक बुढ़िया और उसकी नातिन थी। तो वहां देखी ना एक और बूढ़ी एक थी और एक और नातिन रही। बुढ़िया ने कहा, बेटे हम लोग को नदी तुम नदी पार कर दो। तो बूढ़ी टी कहले कि बेटा हम लोग को तो नदी टा पार कर दे कहले। उसने दोनों को घोड़े में बैठाया तो दियो लोग के घोड़ा में चपा लेन। बुढ़िया ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। उसने जवाब दिया, नाती जमाई या नाती दामाद कहिला। तो हमके जेटा कबे कहले नाती जमाई कहे चाहे नाती दामाद कहे। नदी के बीच पहुंच कर उसने बुढ़िया को घोड़े पर से ढकेल दिया। वह बहुत दूर तक नदी में बहती चली गई। तो सीधा बीच तक पहुंचल नदी। बूढ़ी के ढकली दिली और नभा दिली माने ये पानी बटे। तो वो सीधा बहते बहते चली गई नदी। अब उठकर गांव के लोगों से कहने लगा कि मेरे नाती जमाई मेरी नातिन को ले जा रहा है। तो फिर वो ठीक है कि ना कही बूढ़ी थी कि मोर नाती जमाई है मोर नातिन के ले गई कहली। आप लोग इसे पकड़े एबे तोहरे लेके धोरा कहली। गांव वाले ने बुढ़िया से कहा, तुम्हारा नाती दामाद नहीं है बल्कि एक आदमी घोड़े पर चढ़ाकर ले जा रहा है। कुछ दूर जाने के बाद एक दूसरे गांव में उसने डेरा डाला। थोड़ी दूर जाते जाते दूसरा गांव पहुंची के वहां डेरा डाला। उस गांव में एक धोबी से मन मुताबिक कपड़े ले लिया। और हमारे एक धोबी के मन मुताबिक कपड़े ले ली। धोबी ने घुड़सवार का नाम पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम बिड़ुल है। तो वहाँ धोबी ने घुड़सवार तक नाम पूछ ली तो वहाँ को नाम बता ली बिड़ुल। कपड़े लेकर चरवाहा वहां से भागने लगा। तो वह लुगा गिला लेकर चरवाहा था वहां पड़ा लगा। उससे भागते देख धोबी चिल्लाने लगा कि बिड़ुल उसके कपड़े लिए भाग रहा है। लोगों ने कहा, है मूर्ख यदि बिड़ुल कपड़ा ले जा रहा है तो ले जाने दो। तो उसे किना पता रही कि एक नाम बिड़ुल कहले रहे सेटा। तो बिड़ुल मोर लुगा लगी पड़ा इसको हिला तक लोगे बोलते ए मोर कहिरा बिड़ुल का लुगा लगी सब लेके देख कहले। इसके बाद वो दोस्ती से माने यार तो दोसर गांव पहुंचल। उसने देखा कि यह गांव बिल्कुल सुनसान है। वहां देखे कि वो गांव तो एकदम सुनसान है। एक बुढ़िया से उसने पूछा कि गांव में क्या घटना घटी है जो बिल्कुल सुनसान है। तो बुढ़िया पूछ ली कि गांव को हेला ही निकलम गोटा सुनसान लगी। बुढ़िया ने कहा कि आज यहाँ राजा मर गया है, उसकी कोई संतान नहीं है। बुढ़िया ने कहा तो कहले कि यहाँ राजा ताज मरल और ओकर कोनो छुआ पुता नेक थी कहले। चरवाहा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया मत तुम एक काम करो, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े और रुपये दूंगा। जहाँ पर राजा का दाह संस्कार किया गया है रोते रोते तुम वहां जाओ और कहना कि तुम लोग नहीं जानते हो कि राजा लोग नचनी तस्वीर रखते हैं। କହିଲା कि तुमके मैं सब लुगा फटा सब दम କହିଲା तय जहाँ କହିଲା कांदले कांदते जहाँ का उठिन दाह संस्कार यार हुआ कहबे कि राजा लोगे एहन नचनी फचनी राखी बोलते हैं सही सहीटा मर गया। फिर भी किसी को कोई खबर तक नहीं दिया मरी गए लेकिन मुझे कोई खबर नहीं दिले कहबे कहले। उस समय वह चरवाहा घोड़े पर सवार होकर आया और बुढ़िया को गाली देते हुए कहने लगा, राजा मेरे पिताश्री थे। से तखन जो चरवाहा था आलार ओके गाली देते कहले कि राजा था मोरे पाप रहे कहले। आज तक तुमने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। आज तक तो एक और जना कोनो नहीं कर ले कहले। तुम भी उसी के साथ चली जाओ। उस चिता पर राजा को जलाया जा रहा था, उसी चिता पर बुढ़िया को भी डाल दिया गया।
इस प्रकार चरवाहा राजा बन गया और अपने बड़े भाई को भी अपने पास बुलाया और दोनों भाई आनंद पूर्वक रहने लगे। तो आज यह 3टा कहनी रही सिराई गली। तो आज भिडियोटा আমরা এই সিরাই হলো। সবাইকে बहुत बहुत धन्यवाद।